we are going to talk about that today. Before I start, I just wanted to know how many of you are aware with the concept of chakras? 3, 4, 5 people. Because I'll be teaching accordingly, that's why. Most of the people are new, it seems. So I'll be starting with that. One thing everybody knows rather, that everything is energy. It's a known fact, everything is energy. The only thing, the energy particles move in such a way. Come to the next one. The energy particles move so slowly that our eyes can't catch it. But everything is energy. That's a scientifically given thing. We'll be talking about this many months. Energy in art, aura. I'm coming to that afterwards. Kundalini, Nadi, chakra. Its connection with the glands, organs, chakra, and with emotion. Emotional attachment. Every chakra is connected with certain emotions. Then feeding modalities, and something like that. We'll be going about that. If the time permits, we'll try to see that we have some kind of energy experience also, right? Because our palm regularly emits energy, entire body emits energy. We'll try to have practical also. Before I have to complete, just tell me before 5 minutes. Sorry? It's a long one, so you just tell me before 5 minutes and I have to complete. Yeah, you are not fine. No, that's okay, it's a long one, that's why. If you tell me before 5 minutes, I'll be calculating accordingly. Correct. Please go to the next. તો નીચે આવીને પણ બોલી શકો છો. Yeah, that will be better rather. હા, બરાબર છે. Nikola Tesla. Many of you may be knowing. I can't connect at the moment. Try again in a little bit. Whose phone is he? Okay. He was born in 19th century. He was such a visionary. In 19th century, he had said that mobiles would come. He has to his credit at least 300 patents in those days. So many things are there. And such a person is saying that everything is energy frequency. And we have to talk in that. So, please go ahead. This is just the primary thing. I think one part is gone. That's art energy. Close this window. There's a Okay, window open on the please, side. next one. Close that window. Yeah. Next one, please. Now, our body emits energy. This is a photo. It's called Killian camera. I'll show you the camera also. Our body regularly emits energy. There is one body that we can see, we can touch, that can be operated by doctors. That is one body. But there is another body surrounding us because our body regularly emits electromagnetic waves. And that makes another body which can be photographed. Not with the normal camera, with a special camera. It's a technology called Killian camera, Killian photography. And so many things, I'll be coming to that. So, when the fingers are emitting this much energy, so people say that ladies should meditate more. Probably because in India at least, most of the cooking, at least 90 to 95% of families, cooking is handled by ladies. So what happens when somebody is not in a good mood and cooks something, then that energy passes to the entire family. For a moment, let us think that there is a difference of opinion or some argument between spouses, which is not uncommon, rather very common. And at that point of time, the wife never thinks that I want to damage my family, husband or anybody in the family. But with that mood, if the lady cooks, then that energy moves to everybody in the family. Everybody is getting a part of that damage. So that's why that's very important how our energy passes on. Please, we are just going with the conceptual part because otherwise this takes 3, 4, 5 days seminar. A special seminar we have to run. But I am just trying to make create awareness about the concept. That's about this. The half an hour will do that. Even art sheds energy.
This is a very famous painting called Life. Jacqueline Ripstein, the artist, she is United Nations World Peace Envoy. Now, this painting emits healing energy, and that has been certified by topmost scientists in the world. This is in Florida. The painting has three different things. When you see light, it looks different. Sets different frequency energy, different hertz energy. If you see in darkness, it looks different, and the energy is different. And when you see with UV light, the energy is different. So energy is everywhere, and in American hospitals, these such kind of paintings are there, particularly from Jet Li. And this is not a Google research. This is a personal friend. She has come to Baroda also to my family in my house. She was a guest for 3 days. So one-to-one talk was also there. So many things we have discussed about this. So I just wanted to point out that everything is energy. Because now, whatever we are going to discuss, it is regarding energy. So first of all, we just wanted to see how energy goes on. Please go ahead. There are 4 terms. We would like try to understand 4 terms. Our entire life is within these 4 things. Kundalini, Nadi, Aura, and the 4th one is Chakra. Kundalini is the basic life force. You can go ahead. Kundalini is the basic life force. We use hardly 8 to 9%, 7% of that energy. Our entire life passes on. That can be directly compared with the DNA. In DNA also, they say that only a very minimum part, say 5 to 6%, that is the regular DNA, and others they are calling it as junk DNA. But in Russia, the research has gone so deep, and they are saying that no, that is not a good concept, and now it is coming out to Kundalini. So many scientific research is also available. Kundalini awakening, there is a concept called Kundalini awakening. Suppose we have 100 rupees and we are using only 7 rupees. Kundalini awakening means trying to tap that reservoir from which we can extract more energy and entire life changes. Even if say we are able to make it 14% from 7%, it means our energy is doubled. Okay, sure. Yeah, I was told that I have to speak in English, that's why I was going in English. Okay, I'll be switching on to Hindi. Fine. Kundalini, see, there are 7 chakras. The lowest part is somewhere near the lowest part of spine. Sorry, coming back to Hindi. तो स्पाइन का जो नीचे का पोर्शन है वहां बोलते हैं कि कुंडलिनी है. And when it goes up, it affects various chakras. चक्र क्या होते हैं तो बात करते हैं आगे. So Kundalini awakening gives access to more of that power. Please. हेजल कोर्टनी यूके की बहुत बड़ी ऑथर है. उसने दुनिया भर के टॉप साइंटिस्ट का जो फील्ड में काम कर रहे हैं इनके इंटरव्यू लेके बुक लिखी थी, द एविडेंस फॉर द सिक्स्थ सेंस. इट्स अ सीरीज. द फर्स्ट वन वाज द एविडेंस फॉर द सिक्स्थ सेंस. और इसमें ये सब फोटो लिए गए थे. इसमें हेरी एक नाम आता है. हेरी ओल्डफील्ड वो यूके में है और 1989 में उसने एक पीआईपी स्कैनर ढूंढा है. वो पीआईपी स्कैनर से हमारे आसपास की एनर्जी का पूरा फोटो ले सकते हैं. ना उसका क्या मतलब है पहले ये समझा दूं. वी आर कमिंग टू द ओरा, लेकिन इससे पहले जो ओरा की जो फोटो लेते हैं इसका क्या फायदा होता है. सपोज वन पर्सन हैज गॉट सम डिजीज, से कैंसर, तो जनरली क्या होगा कि उसको कभी फीवर आएगा, कभी कुछ हेल्थ बिगड़ेगी, ऐसा चलता रहेगा. विल गो टू सम नॉर्मल डॉक्टर, फिर तबीयत अच्छी नहीं हुई, विल गो टू सम हायर डॉक्टर, मे चेंज 2-3-4 डॉक्टर्स. डॉक्टर्स विल गो फॉर वेरियस रिपोर्ट्स. पहले ऐसे ही ट्राई करेंगे, नेचुरली ज्यादा खर्च नहीं कराना चाहेंगे. फिर कुछ रिपोर्ट करवाएंगे, रिपोर्ट के बाद डाउट जाएगा, शायद बायोप्सी की जरूरत पड़ी, बायोप्सी करवाएंगे. एंड देन
with reasonable accuracy, because many times decision vary. With reasonable accuracy, they will say that no, it is cancer. ये फोटोग्राफी में क्या है कि बॉडी पे कौन सा डिजीज आने वाला है 6 महीने के बाद में, 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में, कौन से पार्ट में आने वाला है, वो सब इस फोटोग्राफी से पता चलता है। इसके सिवा भी बहुत कुछ और होता है, बट पहले ये बता देना इसलिए जरूरी लगा कि ये जो कुंडली अवेकनिंग का फोटो है, तो ये जब जाता है तब वेरियस चक्र इसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। सो दैट इज अ फोटो फ्रॉम द एविडेंस फॉर द सिक्स्थ सेंस। प्लीज नेक्स्ट वन। नाड़ी। नाड़ी मीन्स देयर आर वेरियस एनर्जी चैनल्स। बॉडी में सटल एनर्जी चैनल्स होती है। ये जो आयुर्वेद वाला बोलते हैं वो नाड़ी नहीं, दिस इज डिफरेंट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहा हूं, जो उसको सेकंड बॉडी बोलते हैं, उस सेकंड बॉडी में ये सटल एनर्जी पास करने के लिए नाड़ी होती है। कोई बोलते हैं 72,000 नाड़ी है, कोई बोलते हैं 72 है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। बट 3 के बारे में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। 3 मेन है। 3 मेन है, इड़ा, पिंगड़ा, सुषुम्ना। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी या मध्य नाड़ी, ये सभी बोलते हैं, वो 3 नाड़ी होती है। इड़ा नाड़ी दुनिया के जितने भी लोग हैं वो ज्यादातर, कोई बहुत बड़े आगे निकले हुए आदमी को छोड़ के, तो 2 पार्ट में बांटे सकते हैं। या तो वो इड़ा प्रोन होगा या पिंगला प्रोन होगा। इड़ा कोल्ड नाड़ी है, वो आदमी को जो कफ रिलेटेड जो डिजीज होते हैं आदमी को बोलते हैं, ऐसे ज्यादा होगा। वो आदमी पास्ट का बहुत सोचता होगा, इसके हिसाब से दुखी होता होगा। 5 साल पहले मेरे साथ ये हुआ था, 10 साल पहले ये हुआ था, वो सब उसका दिमाग चलता रहेगा और इसके हिसाब से बॉडी में एनर्जी का इम्बैलेंस होगा। दूसरी साइड है सूर्य नाड़ी या तो पिंगला नाड़ी। वो आयुर्वेद के हिसाब से बोले तो पित्त प्रधान बोलते हैं, वो पित्त प्रधान होगा। उसका टेम्पर बहुत हाई होगा, रिजिडिटी होगी, एसिडिक डिजीजेस होंगे और वो फ्यूचर का इतना प्लानिंग करेगा। मैं एक रियल एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे फ्रेंड ने अहमदाबाद में, बहुत साल पहले की बात है, बट आई कैन डायरेक्टली रिलेट टू दैट। उसने बहुत बढ़िया उस टाइम में एक फ्लैट लिया 10th फ्लोर पे, पेंट हाउस का लिया। उसके 15 दिन के बाद में ही हम गए। दोस्त ने जब उस ट्रांसफर टू भावनगर से गए अहमदाबाद। बहुत बढ़िया सा फ्लैट था, दिखा रहे थे। वे टेरेस में आए, ऊपर के रूम का अटैच टेरेस था। फिर इनकी वाइफ ने बताया बस फिर क्या है, ये जो वस्त्रापुर में जो फ्लैट है ना, उसको बेच देंगे, इसको बेच देंगे, और सामने वाली जो बंगलो है ना, वो बंगलो लेना है। अरे भाई अभी तो आप पांव रख रहे हैं अभी, लेकिन लंबा लंबा छोटा प्लानिंग इतना हो, तो ये पिंगला प्रधान का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो वो दोनों के बीच में ज्यादातर लोग बटे हुए होते हैं। तो सुषुम्ना यानी कि मिडिल नाड़ी वाले, दैट मीन्स वेरी बैलेंस्ड पीपल। हम वैसे बोलते भी है ना कि सेंटर्ड या बैलेंस्ड। लेफ्ट में है ईड़ा, राइट में है पिंगला, मध्य में जो बोलते हैं मध्य नाड़ी, और हम बोलते भी कि अभी बहुत बैलेंस्ड है, बहुत सेंटर्ड है। वो मेडिटेशन में सिचुएशन ऐसी आती है, या कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत बैलेंस्ड होते हैं, या तो दिन में कुछ समय ऐसा आता है जब हम बैलेंस रह पाते हैं, पूरा टाइम नहीं रह पाते। तो सो दैट इज समथिंग अबाउट नाड़ी। प्लीज गो अहेड। ओके, जस्ट अ मोमेंट। नाउ नाड़ी के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। वी ऑल हैव मेल एंड फीमेल बोथ द एनर्जीज, यिन यांग बोलते हैं, वो दोनों एनर्जी सब में होती है। और जैसे जैसे हम स्पिरिचुअली एडवांस्ड होते जाते हैं, ऐसे ऐसे वो एनर्जी का बैलेंस होता रहता है। मैं ये वन एनर्जी की जो बात कर रहा हूँ वो कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ। सपोज फीमेल है तो ज्यादा कॉम्पेंसनेट होती है, ज्यादा लविंग होती है। मेल है तो ज्यादा एनालिटिकल होते हैं। वो दोनों का बैलेंसिंग की बात कर रहा हूँ। वो जो हमें शिव शक्ति का जो हमारा कंसेप्ट है, अर्धनारी नटेश्वर का वगैरह, वो बेस्ड ऑन दैट ओनली इट इज देयर। तो इनके रिपोर्ट भी निकलते हैं, ये आपके सामने है। वो एक सेंट का रिपोर्ट है, इसमें आप देख पाओगे इज अ मेल, इसमें ऑलमोस्ट 40% फीमेल पोर्शन हो गया है, मेल पोर्शन 60% ही रहा है। जो सामने दिख रहा है जो राइट साइड में, ही यांग का बैलेंस है। दैट रिपोर्ट वाज टेकन इन इंग्लैंड
एंड इसका एक और आपको प्रमाण दूं, अगर आपने मार्क किया हो तो बहुत से सेंट्स ऐसे होंगे जो फेमिनाइन दिखने चालू होंगे। अब याद कीजिए, बहुत से सेंट्स ऐसे हैं कि इनकी काफी भावभंगिमा फेमिनाइन दिखेगी। रीजन इज दिस ओनली बिकॉज दे आर मूविंग टू अनदर एनर्जी लेवल, राइट? सो दैट इज अबाउट नाड़ी। Our main focus will be on aura chakra basically. So I'm going fast at this moment. हाँ, ओरा जैसे मैंने बताया, ओरा मतलब हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलता है उसका जो सेकंड बॉडी बनता है वो ओरा के आधार पर होता है, मतलब उसका ओरा बनता है। उसकी फोटो ले सकते हैं आप, शोइंग द फोटोज आल्सो, एक्चुअल फोटोज, गूगल नहीं, एक्चुअल फोटोज, तो वो फोटो ले सकते हैं। इसके वजह से सब पता चलता है। ये टेबल का भी ओरा होता है, मकान का भी ओरा होता है, घर का भी, मतलब कोई भी स्थल का भी ओरा होता है। हर एक चीज का ओरा हो सकता है और इसकी फोटो ले सकते हैं। काफी इसमें तो एडवांसमेंट हो गए, काफी स्कैनर्स भी इसके आ गए हैं। इसके थ्रू बहुत सारी चीज हम डिसाइड कर पाते हैं। सपोज जॉब की बात कर रहे हैं, अभी बहुत सी जगह पे ऐसा हो गया है फॉरेन में। मान लो मुझे इंटरव्यू देने जाना है, बेसिकली आई एम वेरी हॉट टेम्पर्ड, लेकिन जॉब चाहिए मुझे, तो मैं शांत रहूंगा। वैसे कपड़े में केयर नहीं करता हूं, बट बिकॉज आई एम गोइंग फॉर द इंटरव्यू, तो अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के जाऊंगा, बड़ी बड़ी बात करूंगा, इंटरव्यू में शो पहले से तैयारी करके जाऊंगा। और सामने कोई रियल अच्छा कैंडिडेट होगा जिसको तैयारी करने का टाइम नहीं मिला, तो वो फेल हो जाएगा। और फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आदमी को जितने साल नौकरी में रहे उतने साल उसको टॉलरेट करेगा। तो अभी ऐसा आ गया है बहुत सी जगह पे कि दूसरे क्वालिफिकेशन के साथ साथ में ओरा की फोटो भी लेते हैं, क्योंकि ओरा से पता चलता है कि ये आदमी आर्टिस्टिक है, ये आदमी टॉलरेंट है, ये आदमी गुस्से वाला है, सब कुछ में दिखता है। आई शो यू द फोटोज, इसका पर से आइडिया आएगा। अलग अलग प्रकार से ओरा के कैमरा होते हैं, लेकिन कुछ कुछ मैंने लिया है यहाँ, कंसिडरिंग द टाइम कंज्यूम्ड बिट। प्लीज गो अहेड। एक मिनट। हेल्थ, पर्सनालिटी, मेंटल स्टेट, सर्कमस्टांसेस, everything will depend upon aura. Aura will depend again on chakras, or chakras will depend upon our style of thinking. What we think, how we think, that affects our chakras. Chakras will ultimately affect the aura, and aura will affect everything. Please. ये एक्चुअल किलियन फोटोज है, कैसे एनर्जी हाथ में से जाती है। ह्यूमन बॉडी एमिट्स एनर्जी डायरेक्टली। कुछ फोटोज है इनके हाथ के, पाँव के। बहुत कई बार ऐसा होता है ना, किसी से शेक हैंड किया और बहुत बुरा लगता है कि इससे शेक हैंड कहाँ कर लिया। रीजन ये है कि वो एनर्जी हमारी स्टक करता है सामने वाला। इज ऑलवेज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअसली, इवन एट दिस मोमेंट सपोज आई एम स्पीकिंग, तो कुछ ना कुछ चलता होगा। और दोज पीपल हु आर सेंसिटिव, दे वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। हमारी सेंसिटिविटी अलग अलग होती है, तो पता चलता है। प्लीज आगे। ये तीन आपको दिखाने के लिए रखे, कैसे आर्टिस्टिक हो तो ऐसा हो रहा होगा, लविंग हो तो ऐसा होगा, एंड्योरेंस होगा आदमी में तो ऐसा होगा। और मैं थोड़ा आगे जाके, अभी वो पॉइंट आया नहीं है, अब मेरा जो सोचना ये ऐसा है कि जॉब में तो सपोज किसी को रखा तो हम निकाल भी देंगे। मान लो कि निकाल नहीं सकते, ऐसी कोई गवर्नमेंट जॉब है और रखना ही पड़ा, तो बहुत से लोगों को रखेंगे, कोई बात नहीं, तो दूसरे को रख लेंगे, तीसरे को, चौथे को। बट जस्ट लेट्स गो अहेड। मैट्रिमोनियल में क्या होगा? कभी तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे ना, लड़का जैसा भी हो बहुत अच्छी अच्छी बातें करेगा, लड़की भी ऐसी करेगी बात, और फिर फंस गए, फिर तो पता नहीं है, तो जॉब की तरह तो चेंज नहीं कर पाएंगे। ज्यादा से लाइफ को चेंज करते नहीं है, ज्यादातर तो करते थे, एक तो करते हैं। सुष्मिता सेन तो है ही नहीं हम या ललित मोदी भी नहीं है, तो तब ये गलती हो सकती है। साहब चेंज करने की जरूरत नहीं है ऐसी। फिर भी जो ऑफिशियली जो बात है तो है ही नहीं हम। तो इस टाइम में ये फ्यूचर में आने वाला है इनवेरिएबली। The only thing that concept is not going so far, but ये आएगा।
कि इसके साथ साथ जैसे कुंडली मिलाते हैं ना, इस ओरा रिपोर्ट मिलाओ तो पता चलेगा क्या है. प्लीज गो अहेड. ये आप इंटरेस्टिंग फोटोज आ गए. जो लेफ्ट वाली लेडी है, शी इज फ्रॉम बड़ौदा. अल्पा मांडावत यहाँ की इनरविल क्लब की चेयरपर्सन थी अभी तक, तो शायद अभी चेंज हुई. अल्पा मांडावत. द अनदर इज अमृता, शी इज फ्रॉम कनाडा, शी इज ऑल्सो अ फ्रेंड. नीचे जो है वो दोनों का मैंने इसलिए रखा है कि पता चले कि अलग हर एक आदमी का जैसे सिग्नेचर अलग होता है, नॉट सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, इस तरह हर एक का ओरा अलग होता है. तो दोनों का ओरा में डिफरेंस से आप देख पाएंगे. वी आर नॉट गोइंग टू एनालाइज दैट, इतना टाइम नहीं है हमारे पास. नीचे जो है सेंट का है, हिमालयन सेंट का है, तो वो पूरा अलग है. ये कंप्लीटली पर्पल ओरा है, तो ये कंप्लीटली इसका मतलब डिफरेंट निकलता है. ऊपर सपोज इनकी फोटोबायोग्राफी है, तो बुक का भी हो रहा है, कहाँ क्या पड़ा है, सबका हो रहा होता है. सब में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं. इसके ऊपर एक मैगजीन है, उनका हो रहा है. हम जिससे कनेक्टेड है हम लोग, उन्होंने बताया ना कि हम एक मेडिटेशन मूवमेंट्स कनेक्टेड है. इनके मैगजीन है, फोटोज है, एक पेंटिंग है. तो सबका भाई सबमिशन इज कि जो नॉन लिविंग थिंग्स मानते हैं वो भी लिविंग है, उसका भी हो रहा है. घर में चेयर्स ऐसे उल्टी उल्टी पड़ी होती है ना, तो भी एनर्जी कटती है, ऐसा होता है. गो अहेड प्लीज. मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं मेरे बोलने के बजाय. ओके ओके ओके, फाइन. जाने दीजिए, अब चक्र पे आते हैं. जाने चक्र तक आ जाइए. ओके, जाने दीजिए भैया, आगे आगे. अच्छा, ये फोटो है, कैमरा है, किलियन कैमरा बोलते हैं, इससे फोटो लेते हैं. जाने दीजिए, ये इसका फोटो है, ऐसा कुछ. जाने दीजिए. चक्र, कॉस्मिक एनर्जी पॉजिटिव हम लेते हैं, और जो थोड़ी से नेगेटिव होती है चक्र से जाती है बाहर. इनका काम ये है, जब थिंकिंग पैटर्न जब इफेक्टिव हो जाती है, तो जैसे किचन में सब ब्लॉक हो जाता है ना, पानी नहीं जाता, इस तरह से ये एनर्जी का मूवमेंट ब्लॉक हो जाता है. नाउ देयर आर 7 चक्रास. 7 चक्र की फोटो आ जाइए प्लीज. आगे. हाँ, 7 चक्रास, इस प्रकार के 7 चक्र. नाउ जितना भी हमारा मेडिकल सिस्टम है उसको हम ये 7 के अंदर बांट सकते हैं. सबसे नीचे का चक्र है जिसको मूलाधार चक्र, रूट चक्र. तो नीचे का पूरा पोर्शन इसके अंदर है, सबके सब, और सबका एक एक ग्लैंड के साथ कनेक्शन है. अभी मैं नाम नहीं बोलता हूँ बिकॉज टाइम इज नॉट देयर. इसके बाद में आता है सेक्राल चक्र. जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट है इन योगिक टर्म्स, वो सब सेक्राल चक्र के डॉक्टर है. स्वादिष्टान, दैट इज सेक्राल चक्र, वो सब इसका डॉक्टर है. बाद में आता है नाभि चक्र. जितना गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम इससे कनेक्टेड है. तो जो पहली सबसे पहली थी वो विसर्जन संस्थान थी. इसके बाद में है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम थी. अभी थर्ड ये डाइजेस्टिव आई. फिर हार्ट चक्र आया. हार्ट चक्र में ब्लड सर्कुलेशन पूरा का पूरा वो मेरा वो इसमें है, हार्ट से रिलेटेड एवरीथिंग. एंड pulmonologists also, they also fall into this category. All cardiologists, they fall in this category. Then ENT surgeon, विशुद्धि चक्र, थ्रोट के आसपास के एरिया, वो सब इसमें अंदर आ गए. हमारा कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग, आवाज की क्वालिटी, लाइफ में सक्सेस, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन विशुद्धि चक्र. देन आज्ञा चक्र, यहाँ न्यूरो सिस्टम के साथ है. All neurologists are the doctors of Agya Chakra plus Crown Chakra. All psychiatrists, they are Crown Chakra doctors. So entire medical system is under that. Similarly, सबके साथ कुछ इमोशंस है. अभी मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ. साथ के साथ सब इमोशन है. नाउ ये चक्र का बैलेंसिंग लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रॉम बर्थ टू डेथ जो भी लाइफ में होता है वो 7 चक्र के अंदर है. 3 ही चीज होती है, तन मन आत्मा. ठीक है, इसके ऊपर तो कोई तीसरी चीज है नहीं. तन पूरा आ गया, ऑल इमोशंस, मन आ गया, एंड स्पिरिचुअलिटी तो है ही. तो वो तीनों चीज इसके अंदर है. एंड देन इसके बाद में प्लीज गो अहेड.
पृथ्वी के चक्र होते हैं, ले लाइन्स एक ये थियरी है, दिखा दीजिए फोटो एक। ये अलग अलग चक्र है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सेवंथ दोनों एक ही जगह पे है अभी, फोर्थ एंड सिक्स दोनों एक ही जगह पे है अभी, फिफ्थ एंड सेवंथ ये 7 प्लेसेस है और इसके टूर्स भी निकलती है। जो लोग समझते हैं इसमें यहाँ हाईएस्ट एनर्जी होती है। आपको पता भी होगा कि पिरामिड के अंदर जाते हैं तो लोग बाहर नहीं आ पाते, जो पर्टिकुलरली है तुतुन खान की कबर है जहाँ, इसके अंदर गए तो बाहर नहीं आ पाते हैं। कैलाश से बहुत बड़े ऊपर के पर्वत है, एवरेस्ट वगैरह, उसके ऊपर जा सकते हैं, कैलाश के आसपास घूम सकते हैं, कैलाश क्लाइंब नहीं कर सकते। जितने गए या तो ओवरनाइट बुड्ढे हो गए या मर गए। दैट एनर्जी लेवल इज दैट हाई। तो ये सब के हिसाब से 7 चक्र पृथ्वी के होते हैं। हाँ, चक्र और ग्लैंड का कनेक्शन है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट नाउ प्लीज। इसके बाद में इतने सारे पॉइंट होते हैं चक्र के बारे में तो सेमिनार में, तो मतलब ये मेरे लास्ट मोमेंट में मेरे पास टाइम नहीं था तो बुक के बाद जो वही लगा दिया है मैंने गुजराती में। ये सब इतनी सारी चीज इसके अंदर होती है और बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन इज द बेस्ट थिंग, लेकिन बहुत सारी और चीजें हैं। प्लीज दूसरा दिखा दीजिए। नो दैट वन प्लीज। देखिए कलर थेरेपी से चक्र बैलेंस हो सकते हैं, आहार से हो सकते हैं, योगासन से हो सकते हैं, मुद्रा से हो सकते हैं। साउंड थेरेपी इसमें 5 प्रकार है, वो दिखाया है इसमें। मंत्र, अरोमा थेरेपी, क्रिस्टल, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन जो एनएलपी के पार्ट है, तत्व मतलब जो 5 बेसिक एलिमेंट्स बोलते हैं पंचतत्व, वो ध्यान, भावनात्मक उपाय, अन्य उपाय, ये हर प्रकार से बैलेंसिंग हो सकता है। और वो बैलेंसिंग जब तक नहीं होगा तब कुछ न कुछ तकलीफ रहती होगी। ये बैलेंसिंग के बारे में प्लीज जाने दीजिए, वो भी जाने दीजिए। जस्ट फास्ट ये इमोशंस के साथ। अच्छा, आपको ये फोटो इंटरेस्टिंग है, देख लीजिए। सिम्टम्स क्या लिखा है इसमें, फीवर एंड साइनसिस, तो उसका जो डार्क आता है ना वहां तकलीफ है। और आपको जाने दीजिए, गो अहेड प्लीज। अच्छा लगता है ना शाम को सनसेट वगैरह, तो देखिए वहां की एनर्जी डिफरेंट है अभी उसकी, अभी भी आगे। हाँ, यहाँ परमानेंट मेडिटेशन चलता रहता है, काफी लोगों ने देखा होगा दिल्ली में ये। तो वहाँ इतने पॉल्यूशन के बीच में ये फोटो लिया है और इतना अच्छा बढ़िया फोटो आया है। क्वाइट ताजमहल सब जाते हैं, मूड के साथ जाते हैं, तो वहां की फोटो देखिए। ओके, एंड डॉक्टर्स, ऑटोप्सी टेबल पे बहुत खराब एनर्जी होती है। वैसे डॉक्टर्स एक ऐसा प्रोफेशन है कि जो इतना इम्पोर्टेंट है कि उनके बिना जीना मुश्किल है। बट अनफॉर्चुनेटली बाय द वर्च्यू ऑफ द प्रोफेशन दे आर अब्सॉर्बिंग द नेगेटिविटी ऑफ अदर्स। सपोज कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, तो जिसका हार्ट चक्र खराब हुआ होगा, ऐसे ही सब लोग उसके पास जाएंगे, तो अल्टीमेटली दैट एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड टू डॉक्टर्स। काफी स्टडीज है कि जो फील्ड का जो एक्सपर्ट है, सपोज ऑन्कोलॉजिस्ट है, तो ऐसे बहुत से ऑन्कोलॉजिस्ट की कैंसर में डेथ हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया का बीच में बहुत बड़ा रिपोर्ट भी आया था। कार्डियोलॉजिस्ट है तो उसका हार्ट में डेथ होता है। रीजन क्या है कि जहां हार्ट चक्र में नेगेटिव एनर्जी हो गई, वहां उसी का ध्यान होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, खत्म करते हैं। आपने देखा होगा कि पुलिस वाले, आई एम सॉरी इफ एनीबॉडी इज फ्रॉम पुलिस वाले बोलते हैं ना कि पुलिस वाले से दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, कॉमनली बोलते हैं। कितने भी अच्छे आदमी हैं, इनका ध्यान क्राइम पे रहता है थ्रू आउट, तो फॉर डिटेक्टिंग द क्राइम, इनके बिना चलेगा भी नहीं। लेकिन इसके पीछे वो नेगेटिव एनर्जी सक करते हैं, तो आधे पुलिस वाले गुंडे बन जाते हैं। कॉलेज वाले, आई एम सॉरी एनीबॉडी, दिस जस्ट जनरल ऑब्जर्वेशन। मैंने पहले ही बताया जनरल ऑब्जर्वेशन है, नथिंग इन पार्टिकुलर। कॉलेज, माफी मांग लेता हूँ, बहुत अच्छे भी थे प्रवीण सिन्हा जी। He was a wonderful person. I have been in touch with him. And fantastic experience is there. I mean, J.K. Bhatt, all were very good people. I'm in direct contact with them. Okay, then, कॉलेज के प्रोफेसर बहुत बड़ी उम्र तक यंग दिखेंगे, क्योंकि इनका ध्यान कहाँ होता है? यंगस्टर्स में।
लाइब्रेरी का क्लर्क है, लाइब्रेरी में जनरली ओल्ड एजेड आएंगे, चुप रहना होगा, तो वो भी बेचारा इतना गंभीर हो जाएगा कि 30 साल का होगा, 25 साल का होगा, तो बाहर निकलेगा तो ऐसा लगेगा ये 40 का है, 50 का है। तो जहां हमारा अटेंशन होता है वहां से हम एनर्जी ग्रैब करते हैं। सो दैट्स व्हाई डॉक्टर्स सफर, दो दे आर डूइंग समथिंग गुड फॉर दैट। तो ये ऑटोप्सी टेबल की फोटो है। ऑटोप्सी के समझते हैं, ऑटोप्सी किसकी करते हैं, कहाँ एक्सीडेंट हुआ है, मर्डर हुआ है, ऐसा जिसका एक्सीडेंट हुआ, इट्स नॉट अ नॉर्मल डेथ। एकदम डर गया होगा वो आदमी और सडन कुछ एक्सीडेंट हुआ तो फियर का इमोशन कैच किया होगा पूरा। सिमिलरली सपोज मर्डर हुआ तो तब भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो ये सब जो एनर्जी वाले ये सब ऑटोप्सी टेबल में इकट्ठा होता है। इसका तो पूरा एनालिसिस कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे, बट इसका पूरा एनालिसिस कर सकते हैं।